ڈاکٹر مجید نظامی صاحب کی یہ گفتگو سنوں، اور یہ بات بالکل انہوں نے مجھے کہی تھی بھری محفل میں کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو پھر قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اب وقت ہے کہ ہم اقتصادی میدان میں خود کفالت حاصل کریں۔ Bismillahirrahmanirrahim. It's a fait accompli. Pakistan will have to live with it. ہنری کیسنجر کے زہریلے الفاظ کا جواب پاکستان نے ایٹامک بوم بنا کر دے دیا۔ پاکستان کو یوم تکبیر مبارک ہو۔ Let's take a look at the headlines tonight. 28 مئی یوم تکبیر، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بننے کا دن۔ دفاع تو مضبوط ہو گیا مگر جمہوریت متزلزل، جمہوریت پاکستان میں مستحکم کیوں نہ ہو سکی۔ احتجاجی تحریکیں کس لیے چلائی جا رہی ہیں؟ وزیر اعظم یا نواز شریف کا معصومانہ استعفیٰ۔ And welcome to the 8 PM show. السلام علیکم ناظرین۔ 1971 میں پاکستانی قوم تاریخ کے بدترین بحران سے گزر رہی تھی۔ پاکستان 2 ٹکڑے ہو چکا تھا انفارچونیٹلی، بھارت کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست اور بھارتی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا جو ایک بالکل ڈپریسنگ فیس تھا، اس نے پوری قوم کو شدید ترین مایوسی کا شکار بھی کر دیا تھا۔ بھارت کے جارحانہ عزائم کی وجہ سے بچے کھچے پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ ایسے میں مئی 1976 میں بھارت نے راجستھان میں بوکران کے مقام پر پہلی بار ایٹامک دھماکے کر دیے اور خطے میں اپنی برتری بھی تسلیم کروا لی۔ بھارت کے ایٹامک دھماکوں کے بعد پاکستانی قوم شدید خدشات کا شکار ہو چکی تھی اور ملک کی سلامتی کے لیے فکر مند بھی تھی۔ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ بھارت کے مقابلے پر پاکستان بھی ایٹامک طاقت حاصل کرے، مگر کس طرح حاصل کرے؟ یہ ایک ایسا کام تھا جس کو کرنے کے لیے ایک معجزہ ہی رونما ہو سکتا تھا۔ وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے قوم کو حوصلہ دیا اور عہد کیا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹامک بم ضرور بنائیں گے۔ اور ناظرین، پھر یہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہی 1974 میں کہوٹا پروجیکٹ کے نام سے ایٹامک طاقت بننے کے منصوبے پر کام کا آغاز کر دیا گیا۔ ستمبر 1974 میں ہالینڈ میں مقیم ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خط لکھ کر اپنی خدمات پیش کر دی۔ ایٹامک پروگرام کے لیے پوری کی پوری جو بھی وہ کر سکتے تھے وہ مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اور اگر آپ اس کے بارے میں تفصیلاً جاننا چاہتے ہیں تو ایک ایسی کتاب ایڈرین لیوی کی لکھی ہوئی ڈسپشن کے نام سے، جو کہ اپیرنٹلی تو کتاب پاکستان کے خلاف لگتی ہے، مگر اس کو پڑھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے یہ معجزہ کر دکھایا۔ جنوری 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان ایٹامک توانائی بھرپور طریقے سے اختیار کر لی اور یوں پروجیکٹ 706 کے خفیہ نام سے 31 جولائی 1976 کو اسلام آباد کے نزدیک کہوٹا کے ہی مقام پر انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا قیام بھی ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی طور پر پاکستان کے خلاف سازشوں اور رکاوٹوں کا آغاز کر دیا گیا، مگر اس کے باوجود اس منصوبے پر کام جاری رہا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، حکمران آتے جاتے رہے، آپس کی لڑائیاں ہوتی رہیں، مگر پاکستانی قوم کے عزم اور لگن کی وجہ سے ایٹامک منصوبہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس طرح 1998 آ گیا جس دن بھارت نے ایک بار پھر ایٹامک دھماکے کر دیے اور بی جے پی کی حکومت نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دینا شروع کر دی۔ اس پر اس وقت کے وزیر اعظم یا نواز شریف نے بھارت کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا، اور اسی طریقے سے آج کا دن وہ دن آیا جب پاکستان نے چاغی کے مقام پر 5 ایٹامک دھماکے کر کے بھارت کو منہ توڑ جواب دے دیا اور خطے میں اپنی برابری تسلیم کروا لی، اور یوں پاکستان دنیا میں ایک ایٹامک طاقت بن کر ابھر آیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آبویسلی اس کے بعد پاکستان پوری دنیا کی نظروں میں کھٹکنا شروع ہو گیا، ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا کا آغاز کر دیا گیا جو آج تک جاری ہے۔ کبھی کہا گیا کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام محفوظ ہاتھوں میں ہی نہیں ہے، جس کو آج دوبارہ پرائم منسٹر نواز شریف، جو کہ اب پھر پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کو ایڈریس بھی کیا۔ کبھی الزام لگایا گیا کہ پاکستان کے ایٹامک ہتھیار انتہا پسندوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں، پاکستان پر ایران اور شمالی کوریا کو ایٹامک ہیلپ کرانے کا الزام بھی عائد کیا گیا، مگر پاکستانی قوم اپنے ایٹامک پروگرام پر فخر اور اعتماد کو ختم نہیں کر سکی اور نہ کر سکے گی۔ مگر ناظرین، یہ بھی ایک حقیقت ہے، یہ تو ایک بہت بڑے معجزے کا میں نے ذکر کر دیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک معجزہ اگر پاکستان کا قیام تھا تو دوسرا معجزہ پاکستان کا ایٹامک پاور بننا تھا۔ مگر ہم ایٹامک بم تو بنا چکے ہیں، مگر آج بھی ہم اپنے ملک کو ایک
भरपूर मजबूत जमहूरियत नहीं बना सके। आज भी जमहूरी हुकूमत को यही खतरा लगता है कि कहीं से कोई आकर हमारी जमहूरियत के ऊपर ये एटॉमिक बॉम्ब ना मार दे। हमारे शहर आज भी लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबे हुए हैं। आज भी पाकिस्तान का दिफा तो नाकाबिल तस्खीर हो चुका है, मगर जमहूरियत अभी तक मजबूत नहीं हो सकी। वज़ीर-ए-आज़म ये नवाज शरीफ ने आज इस तल्ख हकीकत का बरमला एतराफ भी किया और शेख रशीद के ट्रेन मार्च और तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक की तरफ वाज़ेह इशारा कर दिया। लेट्स लिसन टू द प्राइम मिनिस्टर। मुझे नहीं समझ आती कि ये ट्रेन मार्च और लॉन्ग मार्च किस मकसद के लिए हो रहे हैं, क्या ये उनके मकासद क्या, उनका एजेंडा क्या है, किस लिए वो ट्रेनों में बैठ के जा रहे हैं। ये 80s और 90s नहीं है, ये 80s और 90s वाली सियासत खेल रहे हैं। ये हम उससे बाहर आ गए हुए हैं, कहीं कब के बाहर आ गए हुए हैं कोई। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो सियासत नहीं चलेगी अब। 80s और 90s तो नहीं है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना भी साफ और शफाफ है। वो ये कहते हैं कि अगर आपने जमहूरियत को मजबूत करना है तो फिर जमहूरी सिस्टम को मजबूत कीजिए, इलेक्शन प्रोसेस को क्लीन कर दीजिए। इस बारे में इमरान खान साहब क्या कहते हैं, लेट्स लिसन टू हिम एज़ वेल। 1 अरब रुपया दिन का लॉस हो रहा है और बिजली की कीमत दुगनी है, तो मुझे ये समझा दें कि ये पैसा जा किधर रहा है। यानी आपने बिजली की कीमत दुगनी कर दी है और सर्कुलर डेट भी 300 अरब रुपए में पहुंच गई है, तो किधर जा रहा है पैसा। यानी दुगनी बिजली की कीमत, किसी की जेब में तो पैसा जा रहा होगा, नहीं तो सर्कुलर डेट खत्म हो जानी चाहिए थी दुगनी कीमत करने पे। और मैं आज अपनी पार्टी से कह रहा हूं, ये जुलाई में फिर बिजली की कीमत बढ़ाने का सोच रहे हैं। हम सड़कों पे होंगे, सड़कों पे तो खैर वैसे ही है पेंशनों की वजह से, लेकिन हम बिजली के ऊपर अगर इन्होंने कीमत बढ़ाई हम सड़कों पे होंगे। अगर इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई तो हम सड़कों पर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक क्या रुख इख्तियार करेगी और पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत बन जाने के बाद भी शदीद मसाइल का शिकार क्यों है, हम आज इसी हवाले से बात करेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूं। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मुराद सईद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, किसी तारीफ की मोहताज नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। डॉक्टर रमेश कुमार PMLN के लीडर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के पास। एटॉमिक साइंसदान, हमारा एटॉमिक प्रोग्राम उन्हीं की वजह से आज भी मौजूद है। वेरी वार्म वेलकम टू यू डॉक्टर कदीर। आज 28 मई का दिन है। आज से 16 साल कबल इसी के दिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक एटॉमिक ताकत मनवा लिया। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, इतने साल गुजरने के बाद वेयर डू वी स्टैंड टुडे? हम लोगों ने, मेरे साथियों ने और हमने बड़ी कुर्बानियां दी उस मुल्क को जहाँ 67 ईयर्स के बाद भी सुई भी नहीं बनती। एक 6-7 साल के अरसे में एक न्यूक्लियर पावर बना दिया, मिसाइल पावर बना दिया, और उसमें हमने और हमारे खानदान वालों ने, बेगम बच्चों ने बहुत कुर्बानियां दी और बहुत मुश्किलात बर्दाश्त की। और हमें ये उम्मीद थी कि वो कौम जो कि शकीस खुर्दा थी, फौजें हार चुकी थी, कैदी बन गए थे और हिंदुस्तान से जूते खाए हुए थे, हमने, मुल्क टूट चुका था, कि जब इस काबिल होगा तो कम से कम इस तरफ ध्यान देगा, अवाम की फलाह बहबूद के लिए, कौमी तरक्की के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, तालीम के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, ये वो तमाम चीजें जी हमारा ख्याल था कि मुल्क जो है उसके बाद इंशाल्लाह 5-10 साल में बहुत तरक्की करेगा, जिस तरह के दूसरे ममालिक ने बैंकॉक और थाईलैंड और इंडिया वगैरह ने की है, ये करेगा। लेकिन बिल्कुल ही हमारा ख्वाब तो खाक में मिल गया। आपका ख्याल से खाक में मिल गया। मगर डॉक्टर कदीर, जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज से 16 साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ थे, आज भी वही प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ हैं। बीच में यकीनन जमहूरियत का प्रोसेस रुका। आपके ख्याल से ये नवाज शरीफ दुरुस्त सिमत में लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को? टीम है उनकी, मुझे उसकी मौजूदगी में तो नजर नहीं आता कि कुछ कर सकेंगे। आपको लग रहा है कि उनकी मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो आज उन्होंने भी फिर एड्रेस किया और वो ये कहते हैं कि लोगों को खदशा है कि हमारा जो प्रोग्राम है सेफ हाथों में नहीं है, और उन्होंने अश्योर कराया कि है। आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो महफूज है। मैं वो हमेशा जोक सुनाता हूँ आपको, जो तेलिस मोचरा रेड फेला में आपने कहानी सुनी होगी कि बहुत बड़े खौफनाक जिन होता था, लेकिन उसकी जान तोते में होती थी और तोता कहीं और होता था, किसी पिंजरे में। तो जब वो कोई शहजादा महजादा था, उस जिन को मारना चाहता था, तो पता लगता था कि जब तक वो तोते को नहीं मारोगे तो वो जिन नहीं मरेगा। तो हमारे लोगों के लिए जो हुक्मरान है, उनके लिए भी ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तोता है, और तोते में उसकी जान है, ये उसको ऊपर वो नहीं आने देंगे।
سر ایکچولی اس موقع میں تو بڑے لوگوں کی جان ہے، لیکن آپ نے اچھا کیا کہ یہ ایشورنس دے دی کہ وہ سیف ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ. مگر جس بھارت کے خلاف ہم نے یا ان کے خلاف برتری لینے کے لیے یا ان کی برتری کو برابر کرنے کے لیے ہم نے بنایا تھا پورا ایٹامک پروگرام، میاں نواز شریف کل ادھر ہی موجود تھے اور مودی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ سب دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ جو سیاست چلتی ہے ہر جگہ، روس اور امریکہ ملتے رہے ہیں اور یہ جرمنی اور مغربی جرمنی ملتے رہے ہیں، روس اور اپنے چائنا اور انڈیا مل رہے ہیں. یہ تو ایک طرح کی ڈپلومیسی ہوتی ہے، اس میں ملتے رہنا چاہیے. آپ دشمن بھی رہیں تو سطح کے اوپر تو تعلقات کوشش کرنا چاہیے کہ ٹھیک رہیں. اب دیکھیے ہم ایک ہی ملک کے دو حصے ہیں اور بہت سے کیا نام ہے ہماری وراثت اور یہ اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یکساں ہیں، رشتے دار بہت سارے ادھر ہیں ادھر ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ تعلقات تو ٹھیک ہونا چاہیے کہ بھائی آنا جانا رہے. کیوں خراب قدم سے اٹھائیں کہ جی تعلقات کشیدہ کر لو. دعوت دی چلے گئے، اچھا کیا دعوت دی چلے گئے، اچھا کیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عبدالقدیر ہمارے ساتھ موجود تھے. شہرزاد صاحبہ، یقیناً آج کا دن بہت اہم دن پاکستان کی ہسٹری میں، لیکن آج بھی ذکر کیا میاں نواز شریف نے کہ مجھے نظامی صاحب نے کہا کہ دھماکہ کر دے ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی. مگر میاں نواز شریف کی حکومت کا تو دھماکہ ہو گیا تھا 12 اکتوبر کو. تو یہ جو جمہوریت کے اوپر دھماکے مارے جاتے ہیں وہ ان سے کیوں نہیں مضبوط ہو سکا پاکستان؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جہاں آج اتنا ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 77 کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اسپیچ کی اور کہا کہ آج ہم ایٹمک پاور بن گئے، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس ایٹمک پاور کو اس طرح یوٹیلائز کیا کہ میزائل ٹیکنالوجی دی اور پھر ہم یہاں تک پہنچے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بھی بہت ضروری تھا اور یہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت تھی. لیکن نظریاتی سرحدیں جو ہیں ان کو جو ہے بہت سارے ایسے لوگ جو ہے اس پہ کلہاڑے چلاتے رہے جو یہ سمجھتے تھے کہ فرد واحد کے ہاتھ میں طاقت رہنی چاہیے، اور وہ بہت سے سو کالڈ سیاستدان جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں لیکن وہ اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرتے رہے. تو گو کہ ایک نظریاتی جو ہے سرحدوں کی حفاظت کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کلیہ دے دیا تھا کہ عوام کی حکومت جسے عوام منتخب کریں. لیکن بدقسمتی سے اس طرح کے دوغلے مسائل رہے کہ وہ عوام تو پیچھے چلی گئی اور 12 سال کے لیے ڈکٹیٹرز آئے اور اپنے طور پہ سیاستدان یہی کہہ رہی ہوں کہ لیکن اس طرح کے سیاستدان آئے کہ جو سمجھ نہیں سکے جمہوریت کو اور وہ ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے رہے. لیکن جب سمجھ میں آ گئی جمہوریت بہت سارے لوگوں کے تو پھر ہم نے دیکھا کہ COD بھی ہوا اور معافی بھی مانگی گئی اور اب ایک ٹریک پہ جمہوریت آئی ہے. اور ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانزیشنل فیز کمپلیٹ ہو کے دوسرا ایک اچھا فیز شروع ہوا ہے جس میں ہمیں امید ہے کہ ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے اور ہم جو ہونے والی خطے میں اس وقت کچھ آگے پیچھے جو مسائل ہو رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچائیں گے. سمجھتے ہیں جمہوریت کو بچائیں گے، لیکن مراد سعید صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے سیکھ لیا اپنے ماضی سے. میاں نواز شریف نے بھی آج اسی کا اشارہ کیا کہ اب ہم وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم نے ماضی سے سیکھ لیا. مگر آپ کی جماعت واپس 90 کی دہائی میں لے کے جانا چاہ رہی ہے، دوبارہ اس طرح ہی دھکیلنا چاہ رہی ہے پاکستان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جو آپ پرائم منسٹر کی اسپیچ دکھا رہے تھے تو انہوں نے جس معصومیت سے سوال کیا کہ یہ لانگ مارچ اور ٹرین مارچ کیوں ہو رہے ہیں، تو ایک پولنگ اسٹیشن پہ اگر آپ کو ٹوٹل ووٹ وہاں پہ 1500 ووٹ اور 8000 ووٹ آپ کو پرائم منسٹر صاحب کو ملتا ہے تو واقعی معصومیت ہے. مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لانگ مارچ کیوں ہو رہے ہیں. ہم نے 4 حقوق کی بات کی، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے. جس طرح کے 5 سال پیپل پارٹی نے گزارے اور پھر جس طرح ٹرانزیشن ہوا ہم نے بڑا بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور ہم بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت ہو، لیکن ہم مضبوط جمہوریت چاہتے ہیں. مضبوط جمہوریت کس انداز سے ہوگا؟ جب آپ کا الیکٹورل پروسیس اچھا ہوگا، اس میں جو خامیاں ہے اس کو ہم دور کریں گے. کہنے کوئکلی ایڈ کہ 68 حلقے کی آپ بات کریں نا، حلقہ سرگودا کی تو وہاں پہ تو الیکشن کمیشن نے پھر کہا مطلب یہ پرنٹنگ کی غلطی آ گئی، پرنٹنگ کی. So you don't believe that? نہیں دیکھیں یہ کیا ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں، اپنے ہمارا وائٹ پیپر کب آیا ہوا ہے؟
उसमें हमने इसका जिक्र किया था। हम जिस दिन पार्लियामेंट में खान साहब की पहली स्पीच थी उस दिन इसका जिक्र हुआ, फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र हुआ, लेकिन जब हल्कों की खुलने की बात आई, जब उम्मीदवारों के दरमियान 1 लाख वोट का फर्क भी तो है। देखिए नहीं, 1,68,000 डिबेट वो नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि इस NA 68 का जिक्र किया तो उसमें उनकी मासूमियत पे इसका हवाला दिया जिस मासूमियत से वो सवाल कर रहे थे। उसके अलावा अगर आप देखिए जो हम क्या चाहते हैं कि हम कहते हैं कि जिस तरह के अमेरिकन रिसर्चर ने कहा था कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस में जो खामियां है इसलिए वो मजबूत नहीं होती कि वो वहां पे इलेक्टोरल प्रोसेस उनका अच्छा नहीं है। फिर डेट की जो रिपोर्ट आई उन्होंने भी ये कहा, फैफिन की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने कहा कि 72,000 जो इलेक्टोरल रूल्स की वायलेशन हुई है इसमें। हम क्या चाहते हैं कि अगर जमहूरियत सही अवामी नुमाइंदे, जिस तरह की शैला ने कहा कि सही अवामी नुमाइंदे, अवाम की हुकूमत हो, तो अवाम की हुकूमत क्या होती है, वो जिसको वोट देते हैं वो पार्लियामेंट में आए। अगर हम करप्शन का आगाज इधर से कर लेते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस में हम करप्शन कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम किस तरह नवाज शरीफ की हुकूमत अवामी हुकूमत नहीं है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कम से कम तम वेरिफिकेशन का जो हम जिक्र कर रहे हैं, मैं सिर्फ सवाल आपका एक ही सवाल था उस पर मैं आ रहा हूं कि कम से कम हम ये कह रहे हैं कि जमहूरियत हो मजबूत, जमहूरियत की मजबूती का ताल्लुक किस चीज से है कि आप इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करें। और इसके लॉन्ग मार्चेस हो रहे हैं। यू आर एड्रेसिंग प्राइम मिनिस्टर्स एसेंशियल क्वेश्चन कि आप समझिए कि हम क्यों सड़कों के ऊपर बिल्कुल, अब मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि इलेक्टोरल प्रोसेस में जो खामियां है उनको दूर किया। आई होप डॉक्टर साहब आपको ये क्लैरिफिकेशन समझ आ गया, लेकिन मुझे वक्त की तरफ जाना है। सॉरी यू केम लेट, सो विल क्विकली गो टू द ब्रेक। उसके बाद आएंगे फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट पर भी हमने सवालात उठा दिए हैं, आप जो जवाब देंगे वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ ने यकीनन वसीम बदामी साहब के अल्फाज में एक मासूमाना सवाल किया था, उस मासूमाना सवाल का जवाब अभी दिया है मुराद सईद साहब ने। वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से इसकी वजाहत लेंगे। कीप वाचिंग 8 PM विद फरिया इदरीस। वेलकम बैक। यौम तकबीर के साथ बड़ी मीठी मीठी यादें मौजूद हैं। मियां नवाज शरीफ अगर क्रेडिट लेते हैं तो यकीनन लेते हैं पाकिस्तान का एक गोल्डन दौर। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्टी इस बात का क्रेडिट लेती है कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने का आगाज उन्होंने किया था, तो वो भी ठीक लेते हैं। मगर जमहूरियत की जब बात होती है डॉक्टर रमेश, तो आज जो सवाल किया मियां नवाज शरीफ ने कि बकौल मुराद के हमारे मासूमाना सवाल के लोग क्यों सड़कों पर निकले हैं, तो आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि वो सड़कों पर क्यों निकले हैं? आपको तो और भी ज्यादा ख्वाहिश होनी चाहिए, क्योंकि आपके साथ बुरा वक्त आ चुका है कि एक मजबूत जमहूरियत के लिए एक साफ और शफाफ निजाम बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो रोडों के ऊपर निकले हैं उनके इरादे क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जमहूरियत के इस पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का ठेकेदार अगर समझा जाए, जमहूरियत अगर यहाँ पे चल रही है तो वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से चल रही है, एक PMLN, दूसरी पीपल्स पार्टी। 2 बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने ये आपने खुद ही से ठेकेदारी ले ली अपने सर पे, उसकी वजाहत भी फरमा दीजिए क्यों एक साल बन गया है। मेरे ख्याल में इस वक्त इलेक्शन हो चुके हैं। फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे, वो भी साईं खुर्शीद शाह ने जो नाम दिया था या चौधरी निसार ने जो नाम उसका वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से उन्होंने ये नाम दिया था कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाए। मासूम बातें कर रहे हैं। फखरुद्दीन जी इब्राहिम की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है, इलेक्शन कमीशन मगर अब देखें ना इलेक्टोरल रिफॉर्म PTI का हर पार्टी चाहती है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो। आज मुझे बताएं 1 साल के अंदर मुराद सईद हो, चाहे इमरान खान खुद हो, चाहे शाह, किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये बात की है असेंबली के अंदर कि हम बैठ के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म इस वक्त देखो मुल्क की जो प्रायोरिटी है इस वक्त पाकिस्तान की, वो इकोनॉमी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ठीक है, बिजली है, मैं समझता हूँ ये भी है। मगर अब 5 साल के लिए एक इलेक्शन हो गए हैं, एक सिस्टम आ गया है, इनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कम से कम अपना प्रोविंस के अंदर डिलीवर करे रोजाना। कभी आपको लग रहा है कि आज मियां नवाज शरीफ ने भी ये जिक्र किया कि हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप चाहते हैं वो चलते रहे, हम सब चाहते हैं वो चलते रहे, तो आप उनका मुतालबा मान लें। उन्होंने आपको डिमांड किया था, मुतालबे के लिए आप वो मान लें, वो सड़कों से हट जाएंगे। मुतालबे के लिए लास्ट भी जब असेंबली हमारा सेशन चल रहा था, ख्वाजा साद रफीकी और शाम कुरैशी की, इमरान खान की आपस काफी असेंबली के फ्लोर पे बातें हुई कि 4 आपके 4 हमारे, ठीक है। आज सुन के मेरे सीरियसली कान पक गए हैं। आप करवा देना, खोल दें, वो तो रेडी कर
करवाने के लिए। आप देखें ना, आप इस वजह से काम, क्योंकि उन 4 हलकों को बार बार उन बातों को उकला के कि भाई ये करना चाहिए। तो आप एक बड़े भाई बनने का सबूत देके, अभी इंडिया के लिए भी तो इतना बड़ा दिल किया है, देखिए आप अपने हल्के खुलवा दें। अच्छा नहीं, अब ये क्या चाहते हैं कि भाई इंक तो वहां पे थी नहीं, अब उसे इंक को हम इंडिकेट करके क्या पूरी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो बात करें? फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं है, बात ये है कि अगर वहां पे इनके किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर किसी भी जगह पे अगर किसी एजेंट ने कोई कंप्लेन दी हो, जैसे ये ख्वाजा साद रफीक वाली जो कहते हैं, वहां पे कंप्लेन इनकी नहीं है। कंप्लेन अगर नहीं होती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल हर बंदे का फैसला कर देती है। इन 4 साद रफीक वाले में लीगल कंप्लेन नहीं है, आप ये कह रहे हैं? जो जैसे इलेक्शन हुई, उसका एक फैसला आ चुका है। नहीं देखिए, एक इलेक्शन हुई, इलेक्शन जैसे हुई, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद अगर किसी को एतराज है तो एजेंट उसी टाइम उस चीज के ऊपर ऑब्जेक्शन डाल देता है। कोई एजेंट जवाब दे दे, लेकिन मेरा सवाल ये कि 21 मई को इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हल्का NA 154 में जो लोधरा है, नादरा के जरिए 25 जून तक वोटों की तस्दीक का हुक्म दे दिया, राइट? एक जगह हो गया तो बाकी जगह भी इंतजार कर ले, बारी आ जाएगी आपकी। देखिए फरिया, नंबर 1 ही कि इन्होंने कहा कि जमहूरियत के लिए हमारी और पीपल पार्टी की कुर्बानियां हैं, और ये मेरे ख्याल से एक डिक्टेटर की पैदावार है, तो मेरे ख्याल इस पे मैं डिबेट नहीं करूंगा, चले छोड़े। तो कुर्बानियां तो उनको फ्रेंडली ऑपोजिशन कह के अगर PMLN की कुर्बानी नहीं होती तो पीपल्स पार्टी PMLN के साथ बैठ के जमहूरियत नहीं चल रही। 5 साल पुरानी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट चली तो बात सुन लेते हैं डॉक्टर साहब, बात सुन लेते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि साद रफीक साहब ने 4 हल्कों की बात की थी। पहले दिन जब खान साहब आए और जब साद रफीक साहब ने 4 हल्कों की बात की, तो उसके बाद स्पीकर साहब ने असेंबली का सेशन खत्म कर दिया और खान साहब को माइक नहीं दी। ठीक। अगले दिन जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए तो हमने 4 हल्के अपनी तरफ से ऑफर कर दिए। हमने कहा कि जो 4 हल्कों की बात आपने की है, बिस्मिल्लाह कीजिए। शेख रशीद साहब का जो एक हल्का उसमें था, उन्होंने भी कहा कि बिस्मिल्लाह कीजिए, हम तैयार हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि कहीं भी तम वेरिफिकेशन करवा दे, आप देख ले कि कौन सी खामियां है, इलेक्टोरल रिफॉर्म लाना चाहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर इस पे बात हुई है, तो उनको गुस्सा किस चीज का है? मतलब हम मेरे ख्याल से ये कोई अनडेमोक्रेटिक डिमांड तो नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू भी समझे, उनका ख्याल ये कि इस पूरे इलेक्शन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं जिनका अब कोई मदावा नहीं है। आप लोग की इंटेंशन ये है कि साबित कर दें कि ये हुकूमत गलत है ताकि मिड इलेक्शन की तरफ चले जाएं। दिस इज योर इंटेंशन। देखिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये तो देखे कि अमल का दारोमदार। अब ये जो है ना, उसका तो अल्लाह ताला को पता है कि इंसान के दिल में क्या है। हम क्या कहते हैं कि हमें किस तरह इल्म होगा कि इस इलेक्शन में कहां पे किस अंदाज से खामियां हुए। आप देखें, आरूस का किरदार सामने आ रहा है। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब की उन्होंने बात की, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ठीक है। आरूस का किरदार सामने आ गया। कराची का NA 256 खुलता है, उसमें 60,000 से आप जो भी ये निकल रहे हैं 60,000, ये वो हम इनकी बात कर रहे हैं, इनके ऊपर आप मुझे तो बोलने देना। आपका तो केस में बहुत सारे लोग आते हैं, आप तो बैठे सारी पॉलिटिकल इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ तो देना, जब आप उनके साथ शैला साहबा की बुदारी आनी है, वो डेप्यूटी स्पीकर वो आपको चुप करा देंगे सब, उन्हें बात करने बोलने नहीं देते। देखिए, मैं ये मिसालें आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल क्यों पेश कर रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि हम अगर अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करेंगे तो किस तरह करेंगे। उसमें आरूस का किरदार सामने आ रहा है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर का किरदार सामने आ रहा है, उसमें आपको 35 पंक्चर वालों के किरदार सामने आ गए, निगरान शेटर के किरदार सामने आ गए। हम ये कहते हैं कि जियो टीवी का भी किरदार ला दिया। देखिए, उसमें तो हमने सारे प्रूफ्स भी दिए हैं। 10:35 पे कौन सी तकरीर किस अंदाज से निकाली गई, जब हमारे रिजल्ट्स आ रहे तो किस अंदाज से फिर उसको चेंज कर दिया गया, वो सारी चीजें हम सबूत के सामने, हमने मीडिया के सामने पेश किए हैं। अब कहने का मकसद क्या है, ये तो हम कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म किस तरह पता चलेगा। वहां पे खूब असेंबली में बात हुई, हमने कह दिया। उसके बाद साद रफीक साहब का स्टेटमेंट क्या था, वो हमने कहा कि ट्रिब्यूनल के पास चलते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट इकट्ठे चलते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ क्या उसी कहा, तो साद रफीक साहब ने कहा कि हम कमेटी बनाते हैं। इससे पहले चौधरी निसार साहब ने तकरीर की तो कमेटी बनाने की बात हुई, लेकिन नहीं बनी। मतलब लीगली बन नहीं सकती। मैंने पूछा था उनके ऑफिस से फोन करके, दिस इज व्हाट दे, वो बाद में पता चला कि लीगली नहीं बन सकती। हम जो बता रहे हैं, हम जो तरीका बता रहे हैं, उसको क्यों अडॉप्ट नहीं करते? उसमें मतलब हम इसमें जमहूरियत को खतरा नहीं है, ये खौफ का शिकार खुद ब खुद है। अब शैला साहब, आप इस वक्त बीच में भी बैठी, लेट मी ब्रिंग हर इन। क्या दोनों एक्सट्रीम व्यूज हैं? उधर उनको खतरा है उनकी इंटेंशन का भी, इनकी जो बात है वो भी सही है, ये साफ शफाफ सिस्टम होना चाहिए। आपने भी इतराज उठाया था इलेक्शन के ऊपर, अब करें क्या? देखिए फरिया, जहां तक इलेक्शन के रिजल्ट का सवाल है, उस पर सारी पार्टीज को इतराज है, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि जो केसेस
4 हलकों के 40 हलकों के जिसके भी हैं वो ट्राइब्यूनल में हैं, असेंबली में उस पर कमेटी नहीं बन सकती क्योंकि ट्राइब्यूनल में आपके जजेस बैठे हुए हैं, वहां पे आप इस मसले को नहीं उठाएं, वहां पे आप लेजिस्लेशन करें बजाय इसके कि आप वहां 7 दिन आए 11 दिन आए, आप वहां आए, वहां पे आप बैठें। अब जो बात है इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म्स की, इलेक्शन कमीशन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, 214 से उठाएं 218 तक चले जाएं, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये किस तरह होगा, ये सड़क पे नहीं बनेगा। ठीक, जब तमाम पार्टीज PMLN समेत ये कहती हैं कि ये पहला तजर्बा था क्योंकि एक ट्रांजिशनल फेज था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए थे तो ये सिस्टम लाए थे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के वक्त कुछ मसाइल आए, तो अब एक बेहतर तरीका यह है कि पहले की तरह बजट आ जाएगा, पहला आ चुका, वो एक दूसरा बजट होता है, ये पार्टी की इंटेंशन का बजट होता है जो दूसरा है। इसके बाद यकीनन ये तरीका होगा कि स्पीकर साहब बैठेंगे, तमाम पार्टीज से लेंगे लोगों को, जैसे कि हमने बनाए थे 27 पार्टीज से लेकर एक कमेटी बनेगी और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं फॉर द इलेक्शन और फॉर द केयर टेकर, ये सब उसमें होगा, ये सड़क पे नहीं होगा। सड़क पे आप अगर कुछ कर भी लेंगे, कोई तरीके से गिरा भी देंगे हुकूमत या कुछ भी कर देंगे, तो ये इलेक्शन कमीशन तो वही रहेगा, इसी के तहत होंगे फिर। तो बेहतर तरीका यह है कि गर्मी में एनर्जी जाया करने के बजाय असेंबली आया जाए। 1 साल में 7 दफा इमरान खान साहब, 11 दफा नवाज शरीफ साहब, 15 दफा मौलाना फजलुर रहमान साहब ये असेंबली में आए। बेहतर ये है कि बिल्कुल ये रिपोर्ट आई है, नहीं जी बिल्कुल है, बिल्कुल रिपोर्ट आई है। देखिए हम भी, मैं कभी इस तरह आवाम में बात नहीं करती, तो मेरा ये कहना है कि वहां बैठे, वहां पे इस पे बात करें कि जी हमने, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, आपका ये पॉइंट बड़ा मजबूत है। मुझे वक्फे की तरफ जाना है। I'll ask you, मुराद, when I come back after the break, कि जब एक लीगल सिस्टम है, लीगल तरीकाकार है, तो फिर जल्दी किस बात की है? आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग 8 PM with Fariha Aziz। वेलकम बैक। मेरा नवाज शरीफ ने कहा कि 90 की दहाई से बाहर आ जाएं जल्द से और सियासत करने वाले। गोइंग टू मुराद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शैला ने अभी जो बात की, अगर टेक्निकली देखा जाए यही प्रोसीजर है बजट के बाद एक सब पॉलिटिकल पार्टी के साथ। ये बात चौधरी निसार को पता नहीं थी, उन्होंने तो पहले कोई और ये अगर इनको इस तरीके से रोडों के ऊपर आना, इन चीजों को छोड़े, KPK की गवर्नमेंट को चलाएं, मुल्क की खिदमत करें, अच्छी जो पॉजिटिव चीजें है उसके अंदर इनपुट दें कि भाई यहाँ पे ये चीज होने चाहिए। असद उमर जैसे आपके पास टेक्निकल ऐसे बन ठीक, आप आज ये मशवरा लेके अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपनी लीडरशिप को भी दें कि सर बिल्कुल आज एक जुमले में समझ गए, आप मुझे बोलिए। सर दोनों सीनियर आपसे एज में वैसे भी सीनियर है, उन्होंने आपको कहा है कि आप मशवरा दिया। उनको तो इल्म ही नहीं है, मैं दलाइल से बात कर रहा हूँ, वो कोई डायलॉग ही बोल रहे हैं। मैं देखिए आपके पास आईन और कानूनी इख्तियार क्या है, रस्ते देखिए। पिटीशन 65 इस वक्त पेंडिंग पड़े हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास। उनके पास कानूनी इख्तियार क्या होता है कि उन्होंने कितने दिनों में इसका फैसला करना है, 120 डेज में उन्होंने इसका फैसला करना है। एक रास्ता, हम गए, हमारी पिटीशन पेंडिंग पड़े हैं, वहां पे फैसले नहीं हुए। एक दूसरा, इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं, वहां पे हमारी सुनवाई नहीं होती। इलेक्शन ट्रिब्यूनल, आपको जिस तरह पता है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसले करने हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हमारी जो साबिक चीफ जस्टिस साहब है वो कहते हैं कि मेरे पास 20,000 और केसेस हैं। मतलब पाकिस्तान की जमहूरियत से और लोगों ने जिनको वोट दिया उससे अहम क्या हो सकता है? जिनके बारे में इमरान खान साहब का कहना ये है कि वो मिले हुए थे। बिल्कुल, तो ये आपके पास कानूनी जो रस्ते हैं, जिस तरह शरीयत ने बात की, मैं कानूनी रस्तों की बात कर रहा हूँ ना, ये कानूनी रस्ते हमने, फरिया आप बता रहे हैं, हम इनके पास हम गए कि नहीं गए? 120 दिन में फैसले होने थे, नहीं हुए। 1 साल का अरसा गुजर गया, फिर 2-3 हल्की खुली बात हुई, उसके बाद खैर खैरियत रही। हमने क्या कहा, पार्लियामेंट में इस डिबेट को लेके आए, पार्लियामेंट इसको हमने 12 टाइम तक जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज है। आपकी टोटल पिटीशन कितनी है? हमारी 17-18 इसमें इस वक्त जो है पिटीशन इसमें पेंडिंग पड़े हैं और 65 इस वक्त टोटल पिटीशन पड़े हैं। सर मैं बताती हूँ, टोटल 64 थी, 59 का फैसला हो चुका है, अब 15 रह गई हैं। 15-16 हमारी पिटीशन जो है 4 हल्के जो है 4 हल्कों के अभी वक्त जो हमारे 4 हल्के हैं, 49 का फैसला हो गया, अभी फैसला नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि 15-16 जो पिटीशन हमारे थे वो पेंडिंग पड़े हैं, इसका फैसला 4 हल्कों की हम बात कर रहे हैं, वो नहीं हुआ। आप उसका चंक तो देखिए ना, एक मेजर प्रोपोर्शन का हो गया, 120 दिन में फैसला थोड़ा सा रह गया, उसके लिए थोड़ा सा सब्र किया जा सकता है। मैं आई एम विद यू कि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए।
चाहिए, लेकिन तरीकेकार के ऊपर हमारी बात हो रही है। तो कानूनी तरीकेकार ये सही है, 120 दिन में फैसला होना था ना, 1 साल का असर गुजरा नहीं हुआ, फिर पार्लियामेंट की तरफ आते हैं, वाला अभी फैसला है, अभी होना है, अभी तम वेरिफिकेशन होनी है, काफी सिलसिले आगे जाना है, इसको 5 साल गुजारने हैं। जब हम अपनी गलतियों की निशानदेही नहीं करेंगे, जब तक हमें गलतियों का इल्म नहीं होगा, तो किस तरह हम रिफॉर्म करेंगे? ओनली पॉइंट इस मुराद साहब की एक सिस्टम जो भी है स्लो है, धक्का स्टार्टर चल रहा है, उससे आपको फैसले मिल रहे हैं, तो इतनी जल्दी क्यों है? जो मैंने वक्फे से पहले भी कहा था कि जो उनको फिर खदशा लग रहा है, जो आज मियां साहब का मासूम सवाल जिसको आप कह रहे हैं, वो इसीलिए है, वो कह रहे हैं कि शायद कोई और मसला है, क्यों इतनी जल्दी क्यों है? इलेक्शन अभी अगले 5 साल बाद है ना, 4 साल बाद, क्या आप उससे पहले देख रहे हो इलेक्शन को? ये सवाल इसलिए लंबा हो रहा है कि मैं आपको बिल्कुल वो जिस तरह टेक्निकल जवाब होते हैं आर्गुमेंट्स के साथ जवाब दे रहा हूँ। मतलब अगर मैं कोई उस किस्म की डिबेट शुरू करूं तो फिर इतने सवाल नहीं होंगे। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ 120 दिन में फैसले होने थे ना, नहीं किए, मतलब ये टेक्निकल पॉइंट है ना, एक सॉलिड आर्गुमेंट है, उन्होंने 120 दिन में नहीं किए, 1 साल का अरसा गुजर गया, वो नहीं कर रहे, सीरियस नहीं है। उसके बाद बिलीव कि इस वक्त भी जो जुडिशरी है वो भी साथ मिली हुई है प्रेशर हमारे ऊपर नहीं, जुडिशरी के ऊपर। उसके अलावा इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं, उसमें आप मुझे बताएं फरिया, क्या हम कहते हैं कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, इसमें खामी क्या है? हम कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट ये बिल्कुल सही कहते हैं, क्या है? हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन हो, इसमें क्या मतलब? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कबात कोई नहीं है। ये हम जो मुतालबे कर रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत की मजबूती कर रहे हैं। जमहूरियत के लिए आप खतरा क्या हो सकता है? प्राइम मिनिस्टर साहब इंडिया जाते हैं, वहां पे उनको चार्जशीट पेश किया जाता है, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी किस अंदाज से कर, वो कहते हैं कि हमारे पास मैंडेट है, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने चार्जशीट 5 मुतालबे जो तो वो पेश कर दिए इंडिया की हुकूमत ने। यहां पे पाकिस्तान की इदारों के 8 घंटे तक उनकी पामाली होती है, उनके ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब क्या कहते हैं कि दलील और हुलीला और इस किस्म के आर्गुमेंट्स आते हैं। जमहूरियत के लिए खतरा कौन है? जमहूरियत के लिए इस वक्त सबसे बड़ा खतरा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब खुद है। मतलब जो चीजें हो रही है, कैदियों को रिहा किया जाता है, लेकिन कोर कमांडर्स की मीटिंग में एक स्टेटमेंट आती है, फौजियों पर जब हमले होते हैं और वो रिटेलिएट करके एयर स्ट्राइक्स करते हैं तो आप उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक करते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, DGISI के लिए तो आप खड़े हो गए, और खड़ा होना चाहिए, सबको खड़ा होना चाहिए, आई से दैट, लेकिन उन्हीं के साथी वहां पे शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई वहां शहीद हो रहे हैं, जब हम उसके खिलाफ एक स्ट्राइक करते हैं तो आपको बड़ा इतराज है। तहरीक इंसाफ का मंशूर यह है कि जो आपके साथ मुज़ाकिरात नहीं करना चाहते, जो आईनी पाकिस्तान को नहीं मानते, उनके ऊपर आप दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। अब एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं, ड्रोन को सबसे ज्यादा प्रिसाइज कहा जाता था। 1500 सिविलियन कैजुअल्टीज पिशावर हाईकोर्ट के डिसीजन के मुताबिक ड्रोन का जो वर्डिक्ट आया। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कहते हैं कि 900 वहां पे सिविलियन कैजुअल्टीज, नहीं ड्रोन नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ड्रोन को सबसे प्रिसाइज कहा जा रहा था। तो ये एयर स्ट्राइक में आपके ख्याल से अब मैं एक घर का मिसाल दूं आपको, यहां पे शरीफुल्लाह का घर है मीर अली में। शरीफुल्लाह का घर था, FC से एक उसका जो भाई था वो रिटायर्ड हुआ, 1 साल उसको हुआ कि वो रिटायर हो गया, उनके घर पे शिलिंग हुई, 17 अफराद उनके एक घर के खवातीन और बच्चे। ये एक वाकया मैं आपको बता रहा हूं। शरीफुल्लाह का घर है, उसके भाई का नाम सैफुल्लाह है, सैफुल्लाह खान, जो कि FC रिटायर्ड हुआ, FC से रिटायर्ड हुआ, एक घर पे शिलिंग से 17 अफराद, उसमें बच्चे हैं। हम क्या कहते हैं, जो हम कोलेटरल डैमेज का लफ्ज कहते हैं, तो जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इजाफा हो रहा है इन चीजों से हो रहा है। आप एक जामे हिकमत अमली का आगाज करें, आपने ऑपरेशन करना है तो कौम को इत्तेमाद में ले, पार्लियामेंट को इत्तेमाद में ले, आपने दूसरा रास्ता इख्तियार करना है तो उस पर इत्तेमाद में ले। जिस तरह के APC में हमने मुज़ाकिरात के आपको मैंडेट दिया था, लेकिन हमने हम ड्रोन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, हम इस स्ट्राइक के खिलाफ आवाज उठा रहे क्योंकि वो प्रिसाइज था। ड्रोन तो अमेरिका कर रहा था, ये हमारी फौज कर रही, लेकिन ये उसको प्रिसाइज कहा जा रहा था। यहाँ पे स्ट्राइक हो रहे आप पूर्व वजीरिस्तान के ऊपर, वजीरिस्तान वाले आज क्या कह रहे हैं, क्या सवाल होते हैं प्रिया में, मुझे उनका परिया, उनका एक सवाल है। हमने आपके लिए आजाद कश्मीर आजाद करवाया, 2200 किलोमीटर बॉर्डर आपका अफगानिस्तान के साथ है, वहां पे हम कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान के लिए इतना कुर्बानियां दी, तो आप ऊपर से हम पे बमबारी क्यों कर रहे हैं? अगर कोई कर दे, ऑपरेशन नहीं हो रहा, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रहे हैं, वो बारूदी सुरंगे लगा लगा के एक दिन में आपके 10-10 फौजी शहीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी जंग नहीं है। वो इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन को आपके जलसे के दिन जो है, जो वहां से शरीफ लोग बेचारे आ रहे हैं माइग्रेट कर करके, उनके कैंप में घुस के जब वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उनमें सुसाइडर एक घुस के उनको शहीद कर रहा है। आप कह रहे हैं हमारी जंग नहीं है। आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ उनसे मुज़ाकरात करें, यानी दहशतगर्दों के साथ आर्मी चीफ बैठे जिन्होंने हमारे फौजियों के सरों से फुटबॉल खेली, वहां पे आप खामोश रहे। अब आप ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है कि 15-15 मिनट आप स्पीच करें। आप मुझे एक बात बताएं, वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक्स हो रही है, 24 घंटे सर्वेलेंस है, मेरी फौज है, कोई भेड़िए नहीं है वहां पे गए हुए, वहां पे सर्वेलेंस हो रहा है 24 घंटे, और उसके बाद हो रही है। और ये कहा जा रहा है
کہ جی کراچی میں جس طرح سے فرقہ واریت کر کے مارا جا رہا ہے اور جس طرح سے ہمارے سپاہیوں کو شہید کیا جا رہا ہے, جس طرح چودھری اسلم کو, شفیق تنولی کو, ان سب کو شہید کیا گیا, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. آپ کی وجہ سے طالبان نہیں لڑ رہے, طالبان میں جنگ ہے اس بات کی کہ غیر محسود جو ہے وہ ملا فضل اللہ ہے, اور آج تک طالبان کا کمانڈر غیر محسود نہیں ہوا. اس کی جنگ ہے, آپ کی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھے اور برے. ان میں جو جنگ ہے وہ اس کی ہے, اور کبھی بھی وہ ایک ان میں اتنی دھڑے بندی بھی اسی کی ہے کہ ان کے ہاں جو ہے آپس کی رٹ کا مسئلہ ہے. وہ کوئی جو ہے مذہبی باتیں نہیں کر رہے. اگر وہ اتنے مذہبی ہوتے تو محسودوں کا جو لشکر ہے, جو کہ اپنے آپ کو لشکر کہتا ہے, جو کہ اسلام کے لیے کام کرتا ہے اور وہ ان سے الگ ہے, وہ ان کو نہ مارتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے بولیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ان سے مذاکرات کریں. آپ کا بندہ تو ہے نا اس مذاکراتی کمیٹی میں, دیں ہمیں رزلٹ کیا ہوا اس کا, دیں ہمیں اس کا رزلٹ کیا ہوا. وہ مذاکرات وفات پاتے اس لیے کہ خود رحیم اللہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات صرف ایک دفعہ ہوئے, اور شاہد لطیف صاحب جو ہیں وہ یہ خود کہتے ہیں کہ اتنی بڑی ناکامی کہ آپ نے ان کے خطرناک قیدی ان کو ریلیز کر کے دے دیے. اور یہ کیسی بات ہوئی سر؟ لیکن ہم ایریل اسٹرائک سے یہ سمجھ لیں کہ آپ مذاکرات ناکام ہو کلیئر ہی نہیں ہے کہ اس کا فوکس کیا ہے. ان کا یہ ابھی تک جو بھی ایسی پوائنٹ آتی ہے, کبھی ایسا کہ ہیلپ کرنی ہوتی ہے تب آ جاتے ہیں, کبھی کسی میڈیا کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے تب آ جاتے ہیں, کبھی ایئر اسٹرائک ہوتی ہے تو وہاں پہ جو وہ طالبان کے فیور میں آ جاتے. بھائی ایک لائن آف ایکشن ہے. کبھی آپ نیٹو فورسز کے لیے احتجاج کرتے ہیں, 2 مہینوں میں پھر تھک جاتے ہیں, اور پھر ابھی جس طریقے سے پھر اپنی مشہوری کے لیے نکلے ہیں, یہ مختلف ہر فرائیڈے کے اوپر جلسے کا, یہ بھی تھوڑے مہینوں میں کر کے پھر آپ ایک مینیفیسٹو سے چلیں, آپ ایک پروونس کو فوکس کریں. آپ کو گورنمنٹ ملی ہے, لوگوں کے بہت بڑے پروونس میں, تو اگر ایریل اسٹرائکس ہو رہی ہیں تو پھر ان کا موقف یہ ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ ان کا موقف. آرمی کے اوپر کہیں بھی حملے ہوں گے, کہیں پہ بھی حملے ہوں گے. آرمی نہیں, اب تو کہا گیا ہے, خود پی ایم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ شہریوں پہ, اور یہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو حملہ کرے گا اس کو جواب اور طالبان کے بھی 48 گروپ ہے, دیکھو نا اس میں جو ٹاکس کرنے کے لیے راضی ہے. آپ 3 گروپ کے نام بتا رہے ہیں, آپ 3 گروپ کے نام بتا رہے ہیں, آپ 3 گروپ کے نام بتا رہے ہیں. لیکن جو بہرالحرار اور سارے گروپ تھے جنہوں نے یہاں پہ بھی کورٹ کے اوپر حملہ کیا, اس وقت بھی تو جب بات چیت ہو رہی تھی حملے, وہ لوگ بھی تو کر رہے تھے. میں طالبان کی یہاں پہ نمائندگی نہیں کر رہا. میں نے کیا کہا ہے, میں نے وہاں پہ جو معصوم لوگ ہیں, کیا ان کے لیے آواز اٹھانا میرے خیال سے جرم ہے؟ جو فوجی جوان بھی شہید ہوتا ہے وہ میرا فوجی ہے. جن کو پتا نہیں ہے, ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اگر آزاد کشمیر میں آپ لڑتے ہیں تو ہم شانہ بچانا ہے, ہم بندوق اٹھا کے لڑتے ہیں. ہم پاک فوج کے خلاف میں نہیں بول رہا, میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بچانے ڈالوں گا. لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں, نہیں, میں پاک فوج کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے. ہمیں ان کے خلاف نہیں بول رہا, میں صرف آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہماری تاریخ گواہ ہے, ہماری تاریخ گواہ ہے, ہماری تاریخ جنگ میں ہمارے بارڈر کے اوپر حملے ہوئے تھے. میں نے جو حوالے دیے, میں نے جو کہ مہربانی کر کے اقلیت جو ہے وہ پی ٹی آئی میں جائے نہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں جو یہاں مولانا فضل الرحمان نے جب خان صاحب کے اوپر پہلے بھی کے پی کے اندر جب بات کی کہ صحیح عمران خان صاحب جو ہے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے, تو عمران خان صاحب نے پتا جواب کیا دیا, میں پکا مسلمان ہوں اس وجہ سے کہ میں نے 2 نان مسلمان کو میں نے مسلمان کیا ہے. کیا یہ وضاحت ہوتی ہے اس کی؟ پہلے بھی یہ جواب دیا تھا, یہ پوچھیں آپ. لیکن ان کا مطلب اقلیتوں پہ نہیں تھا. فوجی سے کیا مطلب؟ مجھے انہوں نے کہا ہے کہ کرائے کے فوجی وہاں پہ کارروائی کریں. کیا میری فوج کسی سے پیسے لے رہی ہے؟ دیکھیں یہ جواب اہم ہے. آپ بات سنی شیلا, میں تو سنی رہی ہوں کہ تو کی آئیں بائیں شائیں بائیں. کیا کہہ رہے ہیں, میں دلیل کیا دے رہا تھا, دلائل کیا دے رہا تھا. آپ ڈیبیٹ کو کہاں لے کے, ہم نہیں کیا کہتے, لیکن ساتھ کا منشور کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مذاکرات نہیں چاہتے, جو لوگوں کے اوپر دھماکے کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر دوسرا راستے اختیار کرے, آپریشن کرے. یہ تحریک انصاف کا منشور ہے کہ آئسولیٹ کرے, ایلیمینیٹ کرے. یہ تحریک انصاف کی منشور آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اس کا حصہ ہے. لیکن آپ بتا سکتے ہیں کون سے لوگ نہیں چاہتے.
ایک एरियल स्ट्राइक्स आप लोगों के ऊपर से शेयरिंग करते हो। मेरी वालदा आज भी, मेरी वालदा अभी शिफा इंटरनेशनल में पड़ी हुई है, 6 साल उनको हो गए कि ये बम की शेयरिंग जो ऊपर से होती है उसी में वो जख्मी है, अभी वो शिफा इंटरनेशनल में है। हम इस चीज को भुगत रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ये ऑपरेशन ना करे। एयर स्ट्राइक टारगेटेड होती है। ये तरीका नहीं है। मून मार्केट में जिन बच्चों को निशाना मैं कह रहा हूँ कि वो ज्यादा हो रही है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन के ऊपर धमाके हो रहे हैं, जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन ले, लेकिन वहां पे भी मासूम लोग मरे, यहाँ पे इस्लामाबाद में भी मासूम लोग मरे, लाहौर में मासूम लोग मरे। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, मैं नाम बता रहा हूँ। इस तरह होता है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी बड़ी जो दहशतगर्द है उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और अच्छा, उनके खिलाफ ही तो भाईजान मैं जो नाम ले रहा हूँ ये दहशतगर्द है। मेरी बात सुन लें। आज तालिबान के एक धड़े ने अलग होकर कहा है कि दूसरा जो धड़ था वो मासूम लोगों को निशाना बना रहा था। तो फिर आपको किस तरह लग रहा है कि क्या पाकिस्तान आर्मी के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है जब वो ये स्ट्राइक्स करें? वो कहते हैं हमारे पास ड्रोन्स हैं, हम उससे मॉनिटर करते हैं, देन दीज आर वेरी प्रिसाइज अटैक्स। ये उनका मौक़िफ़ है इस पाकिस्तान आर्मी का। मैं उन पे ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, उनकी जाने नहीं है हमारे लिए। फरिया मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ना, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं जो नाम ले रहा हूँ तो साबित तो होगी ना। तो ये तो एक 70-60 कह रहे हो कि आप मरी है, वो 60 पे 17 मैंने आपको बता दिया कि एक नगर में जाना चाहते हैं। हमारी फौज वहां जाके अंधाधुन लोगों को मार रही है, वो कमांडर के नाम ले रहे हैं। देखें वहां से इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। ये तो आप फौज और हमें लगा रहे हैं, तो फौज और हमारी लड़ने की बात नहीं है। में उन्होंने नाम भी बताया, यहाँ भी होता है, थोड़ा बहुत यहाँ भी जो है जुल्म हो रहा है ना, मैं भी वही कह रहा हूँ। दरबार में कौन थे? दादा दरबार में जुल्म हुआ है, शेरा जुल्म हो रहा है उनके साथ। कहीं तो मारना पड़ेगा, कोई तो करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका नहीं है। मैं थोड़ा नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने मारा, उन्होंने मज़ाकरात की बात की। साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, मज़ाकरात की साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ, बाजोड़ में ऑपरेशन हुआ, मोमन में ऑपरेशन हुआ, खैबर एजेंसी में ऑपरेशन हुआ, 7 अजला में मलाकन डिवीजन का ऑपरेशन हुआ। अगर इससे दहशतगर्दी का खात्मा होता तो अभी तक हो जाता। हो जाता। अगर जो है कंफ्यूज करने वाले सियासतदान ना होते कर रहे हो आप अगर इलेक्शन लड़ा, अब आप अपने खित्ते की मसाइल भूल के बेईमानी बेईमानी में लग गए। आपको चाहिए कि वहाँ पे बिजली बनाए, वहाँ पे अपने बजट में, आप अपने बजट में 5 साल में दहशतगर्दी खत्म नहीं होती। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आए, हकीकत में लड़े। जिस तरह श्रीलंका में मेरा सवाल ये मुराद साहब, फिर क्या इसलिए कि आप लोग उन्हें मुसलमान कह रहे हैं। हमें बातचीत करनी, अब और कोई हल नजर नहीं आया तो एरियल स्ट्राइक्स किया, ऑल आउट हम नहीं गए हैं उनके खिलाफ। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। सर्जिकल का मतलब है कि बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, मारो वहाँ पे जो मासूम की बात नहीं हो रही। मासूम लोग हैं फरिया, आम लोग हमारी तरह और आपकी तरह लोग हैं, वहाँ पे बसते हैं। हमारे 65,000 लोग मारे गए, उनके 3,000। मैं 65,000 के भी कर रहा हूँ। मैं एक किसी बात आपको किसी एक कश्ती पे सवार होना पड़ेगा। आपको किसी एक कश्ती पे यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। आप उसका रास्ता बता दें। बुश का स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बुश का स्टेटमेंट क्या? है, ये बुश का स्टेटमेंट है, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। इस तरह नहीं होता। आप उसका रास्ता बता हम आइडेंटिफाई करें। ये सवाल बंदा है ना कमेटी में, रिजल्ट दे दे मुझे। कमेटी का रिजल्ट क्या है मुझे दे दे। मैं बता रहा हूँ, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा कि 20 से 25 ऐसे ग्रुप है जो मुज़ाकरा करना चाहते हैं। हमने भी कहा कि मैंने थोड़ी कहा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने कहा है ना, वो चुप हो गए ना, उन्होंने रोजा रख लिया खामोश। 26 एजेंसियां उनके अंडर आती है ना, मेरे अंडर तो नहीं आती। उन्होंने कहा कि 20 से 25 ग्रुप में मुज़ाकरा करना चाहते हैं, कर दे उनके साथ मुज़ाकरा। हम क्या कहते हैं कि अगर आप लोग वहां पे ऑपरेशन करना है, कम से कम आप पार्लियामेंट को इत्मीनान में ले, सबको पता है। और जो वहां पे आम मासूम लोग स्ट्राइक किस तरह हो रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि वहां पे मासूम लोग मर रहे हैं और आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जो उनको पनाह देगा वो मासूम नहीं होगा। किसको पना दिया? एफसी का बंदा उनको पना देगा। एफसी कौन है? फोर्सेस का बंदा था ना, उनको पना देगा। हमेशा दरवाजे खुले हुए। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी बमबारी होगी, जब भी इस तरह के मामला होंगे तो फौज तो क्या काम होता है, वो आपको इलाका क्लियर कर देती है। वो तो आपको इलाका क्लियर करके देगी। वो तो हर किस्म का जिस तरह उनको ऑर्डर होंगे वो करेंगे। मैं फौज की बात पे यकीन करूंगी। उन्होंने कहा है 24 घंटे सर्वेलेंस है, सर्जिकल स्ट्राइक है, चुन चुन के कमांडर मारे जा रहे हैं। पहली बात देखिए, जो आप आइडेंटिफाई करें उन लोगों को, जो आप वहां पे 7 लाख लोग हैं, हम तुम्हें मारने वाले हैं, अलग हो जाओ, ऐसे कहेंगे क्या? क्या बात ये कि आप देखें, हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की मशहूर इंटेलिजेंस है। ठीक, हमने जब भी
जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको बताते हैं कि भाई जिसको अगर हम बताते हैं कि भाई ये चीज जो है यहाँ पे टारगेट होना चाहिए, जेल का वाकया देखें, कुछ नहीं हुआ। इस वक्त हमें मुल्क के अमन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए, दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए ये सर्जिकल स्ट्राइक्स जहां पे पता है कि यहाँ पे ये बारूद है, यहाँ पे ये एक्शन होना चाहिए, वहां पे होगा। टास्क जो करने आएगा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए उसके साथ टॉक्स भी किए जाएंगे। ठीक है ना। बाकी इस तरीके से कि भाई हमें बताया जाए पार्लियामेंट ये सर्जिकल स्ट्राइक्स कभी ना आप असेंबली में आ रहे हैं, ना अपने सूबे के लिए कुछ कर रहे हैं, स्कूल बनाने के लिए बाहर से फंड जमा कर रहे हैं, आपने बजट में अमेरिका तालिबान स्कूल तबाह कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई बयान नहीं। गरीबों के जलाए जाते हैं, वहाँ पे 200 मासूम लोग काट की वजह से मरते हैं, और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, फेस्टिवल उनका जो यूथ फेस्टिवल था, क्या कल्चर फेस्टिवल, ये तो चलनी चाहिए चीजें। आप कैसे बच्चे मर रहे थे, कैद से मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, कोई पाकिस्तान में नहीं मरा, नहीं कुछ नहीं मरा, बंद है। आप जो बच्चों में पैसे खर्च कर रहे हैं, आप उनको स्कूल बनाए, वहाँ पे रोजाना की बुनियाद सिंध के स्कूल का निजाम, खैबर पख्तूनख्वा के आप पर एक काम करें, इस प्रोग्राम में तय करते हैं। शेरा रजा आपके साथ होगी, मैं आपके साथ होगा, कराची भी जाएंगे, सिंध भी जाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा अब इन्होंने चैलेंज किया ना, और आपने भी इनको साथ दिया। मैं आपको चैलेंज का यही जवाब दे देती हूँ। आपके सूबे के सेक्रेटरी भी मौजूद थे, आईसेब ने और अलिफ एलान ने इसी इस्लामाबाद में 2012 की रिपोर्ट है। मेरी बात तो सुन, 2012 की रिपोर्ट है, आप नए नए आए हैं, जरा बोलना ही, मुझे पता है 2012 की रिपोर्ट भी शेयर हुआ है। हम ये शो रख लेते हैं। नहीं उसमें बिल्कुल अब तक सिंध ने सबसे ज्यादा रिपोर्ट कब की है? खामोश तो हो जाए ना, ये 2014 एक मिनट ना, 14 नहीं 13 है। जाएंगे खैबर एक बात कहना चाहती हूँ कि 12 में भी 12 और 13 की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा प्रोविंस सिंध, वो प्रोविंस सिंध है हमारी हुकूमत नहीं बनी थी। खुदा के लिए पार्लियामेंट आपका लीडर नहीं आता, आपको मैं आपकी बात ही नहीं कर रही, मैं आपकी बात ही नहीं कर रही। अल्लाह के बंदे, आपको 12 और 13 में सबसे पहले सिंध ने सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया है। अब इनका 1 साल आने वाला है, 90 दिन में केपीके में बिजली बना रहे थे, बजट अगर मेरा पार्लियामेंट में नहीं आते, साहब ने मुझे ये चैलेंज देके वो वापस फिर गए थे, आपने वापस एजुकेशन का क्या हाल है, लेकिन मुझे हुआ इंटीरियर से जाने का, इंटीरियर के भी की जाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।